They are working on a strategy which is called RAM. जो लोकसभा चुनाव है उसमें 55,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, तो रफली 100 करोड़ पर सीट प्लस. Cash is still king when it comes to electoral funding. Opposition cannot say that our electoral bond is clean, but BJP's electoral bond is dirty. या जिस भी पार्टी का कम्युनिकेशन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स इज स्ट्रॉन्ग, दैट पार्टी हैज एन एडवांटेज. सो ऑलमोस्ट इस बार लगभग 100 करोड़ वोटर है. कोई भी सरकार बिना काम किए भारत में चुनाव नहीं जीत सकती. और ऐसी धारणा है कि महिला मतदाता जाति से ऊपर वोट करती है. Most of the opposition parties are opposing this one nation, one election. Is 15-16% vote share lead is just because of Modi. एक और फैक्टर जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है राम मंदिर इनॉग्रेशन. तो बीजेपी इज द क्लियर फेवरेट टू विन. Our guest today is Amitabh Tiwari, the political strategist who left behind the world of investment banking for his passion for elections and politics. In this episode, he's joined us to break down Indian politics. Amitabh explains it all, from how election campaigns are designed to the factors that impact voter behavior to electoral bonds and CAA. Tune in for an in-depth episode on all things politics and, most importantly, his predictions on who'll win Lok Sabha election 2024 and why. Welcome to the Humans of Bombay show, Amitabh. How are you feeling? It's great to be here. Thank you. Thanks for the opportunity. I'm sure you're in demand right now. It's the time. It's the season. Yeah, election time. I mean, Yeah. many shows, television, etc. So Yeah. in the evenings it gets busy. It gets busy. Yeah. But you've had such a interesting trajectory, from being in corporate India to being an investment banker to now being known as a political guru. Very fascinating journey. What's it like to be a political strategist? It's good. I mean, बिहार यूपी वाले को थोड़ा पॉलिटिक्स का कीड़ा होता है. So there was something on my mind when I was in the corporate world. And after a decade in the corporate world, I said probably this is the right time 5 to 6 years ago to make a shift. Yeah. So I made a career shift when I was between 35 to 40 years of age. It was a risky proposition. Many people said, अरे क्या कर रहा है, corporate banking job है. उस वक्त दुबई में मैं ABN AMRO में था. ठीक ठाक सैलरी, ठीक ठाक जॉब, सेटल्ड लाइफ. But I took a risk because this is what I was passionate about, or I am passionate about. And so far so good. I mean, hard work has paid off, and by the grace of God, so far so good. Very controversial line of work to comment on politics in India in that sense. But yeah, I mean, today in the last, you can say 10 years, it's not only India. I mean, the advent of social media की वजह से क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा polarized हो गए. Of course. Opinions have become fairly hardened of people. So, and it is very difficult to be neutral also. So, कभी कुछ करो तो एक पार्टी के लोग नाराज हो जाते हैं, कभी कुछ लिखो तो दूसरी पार्टी के लोग रहता है. कोई ना कोई नाराज रहता है. But ठीक है. I mean, as far as I maintain my neutrality and I largely speak data back, so that is the niche which I have created for myself. So yeah, that works. Okay. So we'll start with the basics. Electoral system जो है, जो structure है हमारे electoral system का, can you break it down for us? And how does it operate to ensure proper representation at both the region, like the local as well as the national level? Yeah, so essentially top पे लोकसभा है. लोकसभा में 543 सीटें हैं. So 543 constituencies in which everybody who is eligible to vote votes. So almost इस बार लगभग 100 करोड़ वोटर है. 97-98 करोड़ वोटर्स हैं. क्या है एज ग्रुप, एज ब्रैकेट आप बता सकते हैं? 18 से 35 जो एज ब्रैकेट है वो 50% है लगभग इस वोटर साइज के, और 35 से ऊपर लगभग बाकी 50% है. 60% से ऊपर आप कह सकते हैं लगभग 10 से 15% के बीच में सीनियर सिटीजन्स भी वोटिंग पॉपुलेशन में है. तो लोकसभा इलेक्शन में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मेजॉरिटी जो है वो 272 सीट्स की है. 272 सीट्स जिस भी पार्टी या अलायंस को आती है वो अपनी सरकार बनाता है सेंटर में. और भारत में प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं होता, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम वैसे नहीं है. थ्योरेटिकली MPs elect the प्राइम मिनिस्टर, बट कुछ सालों से या
काफ़ी सालों से पार्टीज जो है अपना प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट भी डिक्लेयर करती हैं, क्योंकि जब आदमी वोटिंग करता है तो बहुत सारे लोग लीडरशिप के इशू पे भी वोट करते हैं, तो इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर उसके बाद आपके जो स्टेट्स हैं, जितने राज्य हैं हमारे यहाँ, उसमें भी चुनाव होते हैं और राज्यों की खुद की सरकारें होती हैं गवर्नेंस के लिए, जिसको विधानसभा चुनाव बोलते हैं। तो विधानसभा चुनाव में जो उस राज्य के लोग हैं वो लोग वोट करते हैं, सेम वोटिंग पैटर्न होता है। लोग अपने एमएलएज चुनते हैं और जिस पार्टी को भी मेजॉरिटी आती है उसका चीफ मिनिस्टर बनता है। उसके बाद जो है, जो इससे नीचे जो लेवल है, वो लार्जली डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे हैं, यानी आपका इलाका जो है वो रूरल है या सेमी अर्बन है या अर्बन है। तो रूरल में यही पैटर्न होता है वोटिंग का, लेकिन उसको पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं। तो ग्राम पंचायत के लिए चुनाव होता है, उसमें सिंबल पे चुनाव नहीं होता, उसमें इंडिविजुअल्स चुनाव लड़ते हैं, तो कुछ गांवों के लोग ही वोट कर सकते हैं। फिर म्यूनिसिपैलिटी होती है, जो आपको एक तरह से आप उसको सेमी अर्बन कह सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ भी उस एरियाज़ को गवर्न करती हैं और उनको सेंटर और स्टेट से फंड्स मिलता है। उसके बाद जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, जो मेट्रोज हैं, जो बड़े शहर हैं, उनको गवर्न करती हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। जैसे यहाँ पर बीएमसी है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो यहाँ भी वोटिंग जो इस क्षेत्र के लोग हैं वही कर सकते हैं। म्यूनिसिपल काउंसलर्स इलेक्ट किए जाते हैं, उसमें से फिर जो पार्टी ज़्यादा सीटें लाती है, जो मेजॉरिटी जिसकी होती है, वो एक मेयर को इलेक्ट करता है। कहीं कहीं पे जैसे एमपी है तो इंदौर में मेयर के लिए इलेक्शन सीधा होता है। कहीं कहीं पे जैसा दिल्ली है या बॉम्बे है, वहाँ मेयर का इलेक्शन नहीं होता। जो काउंसिलर्स हैं वो अपना मेयर चुनते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। तो लार्जली इन 5 टीयर्स पे जो भारत की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो क्लासिफाइड है, कैटेगराइज्ड है। और एक इलेक्शन कैंपेन को डिज़ाइन कैसे किया जाता है? देखिए, इलेक्शन कैंपेन जब भी डिज़ाइन करते हैं तो इलेक्शन कैंपेन के काफ़ी एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई जब लोग वोट करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, किस चीज़ पर वोट करते हैं, तो उसके बेसिस पे इलेक्शन कैंपेन डिज़ाइन होगा। तो अगर नॉर्मली बात करें तो एक कैंडिडेट को जो भी वोट मिलता है वो उसके खुद के काम के ऊपर या उसके इमेज के ऊपर होता है, पार्टी सिंबल के ऊपर होता है। क्योंकि अगर आज लेट्स से भाजपा या शिवसेना या कांग्रेस के टिकट पे मैं और आप भी खड़े हो जाएं तो कुछ वोट तो मिलेगा ही, क्योंकि पार्टी का वोट है। जो पार्टी लॉयल्टी, पार्टी कैडर का वोट है, वो आपको पड़ेगा ही, मुझे पड़ेगा, जो भी खड़ा उसको पड़ता है। और एक वोट होता है लीडरशिप का, यानी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, जो भी जो लीडर्स को पूछते हैं लोग, वो उनके बेसिस पे वोट करते हैं। तो ये लगभग 1/3 होता है एज अ थंब रूल। 1/3 उसके खुद का इमेज, 1/3 पार्टी का सिंबल और 1/3 आपकी लीडरशिप। तो ये 3 कैटेगरीज है लगभग। और जब भी कोई सरकार, जैसे कैंपेन डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे हैं, आप गवर्नमेंट में हैं या आप विपक्ष में हैं, ऑपोजिशन में हैं। अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो आपका थोड़ा कैंपेन का दायरा थोड़ा बंद जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एलिगेशंस नहीं लगा सकते, क्योंकि आपसे लोग पूछेंगे कि आपने किया क्या है, एलिगेशन तो बाद में लगाना। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप सिर्फ अटैक कर रहे होते हैं, तो हिट एंड रन आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज पे अटैक कर सकते हैं, उस पर कोई खास मतलब, और ट्राई करते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो चल जाएगा। तो अगर आप सरकार में हैं तो सबसे पहले तो, क्योंकि भारत में काफ़ी एक मिसकंसेप्शन आजकल लोगों को हो गया है कि लोग मीडिया मैनेज करके या ईवीएम मैनेज करके लोग जीत जा रहे हैं, ये सब बातें। कोई भी सरकार बिना काम किए भारत में चुनाव नहीं जीत सकती। तो जो अगर गवर्नमेंट साइड पे आप हैं तो सबसे पहले तो आपको बताना होता है कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपने किया क्या है लास्ट टर्म में आपने किया क्या है। अब अचीवमेंट्स या एब्सोल्यूट नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता है। अगर मैं आज से 20 साल पहले एमबीए में था, मुझे फर्स्ट जॉब में मुझे 20,000 रुपये शायद मिलते थे, और आज मान लेते हैं 2 लाख रुपए मिलते हैं, तो ग्रोथ तो नेचुरल होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर बाकी लोग 10 लाख कमा रहे हैं और मैं 2 लाख कमा रहा हूं तो मैंने अंडर परफॉर्म किया।
Correct. और बाकी लोग 1 लाख कमा रहे हैं और मैं 2 लाख कमा रहा हूँ तो मैंने बहुत अच्छा किया है। Yeah. तो फिर आप कंपेयर करते हैं Correct. कि 5 साल मैंने ये किया या 10 साल मैंने ये किया, पिछले 10 साल में क्या हुआ था या पिछले 5 साल में क्या हुआ था, होलिस्टिकली। Correct. You want to show whether that you are better off, you have done better. हाँ, सिर्फ खुद की रेस नहीं है। हाँ, खुद की रेस नहीं, क्योंकि कंपैरेटिव है, इट्स अ चॉइस ना, Yeah. वोटिंग इज अ चॉइस हाँ, बिटवीन ए correct. एंड बी हाँ, correct. एंड सी एंड डी एंड ई, व्हाटएवर, हाउ मेनी कैंडिडेट्स। फिर आप अपना विजन बताते हैं, क्योंकि ये तो पास्ट है, आप फ्यूचर में क्या करेंगे, मैनिफेस्टो क्या, मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, अपना विजन बताते हैं कि हम ये करेंगे। और नरेंद्र मोदी ने एक और इनोवेटिव इसमें कैंपेन किया है कि जब वो कंपेयर करते हैं तो वो अपने प्रीडिसेसर से कंपेयर नहीं करते हैं, वो 10 years वर्सेस 70 years करते हैं। So that is a mind-boggling number from a psychology perspective, that I have done better, as he claims, not only in the not only versus my predecessor who was Manmohan Singh of and his tenure of 10 years, but for the past 70 years. तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई, अगर ये अचीवमेंट है, लोगों को अगर ये विश्वास हो जाए, जो भी इस बात पे विश्वास करता है, तो उसके लिए ये एक अचीवमेंट लेवल जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इट्स अ गेम ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग वोटर बिहेवियर, साइकोलॉजी एटसेट्रा। वहीं जो विपक्ष है वो अटैक करता है, बहुत सारे मुद्दों पे अटैक करता है कि भाई आपने ये कहा था, आपने ये नहीं किया। करेक्ट। तो अटैक के मोड में एक ये हो सकता है कि आपने ये कहा था, ये नहीं किया, या फिर आपने हमारी सरकारों से अगेन कंपैरेटिव खराब काम किया। करेक्ट। जैसे आज कुछ लोग या कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो मनमोहन सिंह का टेनर था उससे आज ये जो 5 साल है उसमें जीडीपी ग्रोथ कम है। सो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ मोदी इज वर्स देन मनमोहन सिंह, इज व्हाट कांग्रेस क्लेम्स। सो यहाँ भी वही पैटर्न होता है कि भाई आप अपनी बात बताते हैं, अपनी बात नहीं बताते क्योंकि आप तो है नहीं सरकार में, लेकिन आप सरकार की बात बताते हैं और उसकी विफलताओं को हाईलाइट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं अपनी सरकार से और फिर अपना विजन बताते हैं कि हम कैसे भारत को आगे लेके जाएंगे या अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे करते हैं। तो लार्जली ये डिजाइन होता है, इस पे डिजाइन्ड है। अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे जाते होंगे इलेक्शन कैंपेन में? अब वैसे तो एमपी में तो आई मीन लोकसभा चुनाव में पर कैंडिडेट पे आई थिंक 95 lakhs की लिमिट है, लेकिन भारत में अगर आप एक CMS करके थिंक टैंक है, सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज, उसके हिसाब से जो लोकसभा चुनाव है उसमें 55,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो अगर आप उसको लोकसभा सीट से डिवाइड करें, बिकॉज 543 सीट्स हैं, तो रफली 100 करोड़ पर सीट प्लस is what the political parties and candidates, all the candidates put together would have spent on the election। और जैसा मैंने काम किया है पहले इलेक्शन में, कैंपेन्स में, इट्स नॉट अ वे ऑफ नंबर, बिकॉज अगर 10 कैंडिडेट खड़े हैं, किसी भी सीट पे 8-10 कैंडिडेट कहीं भी खड़े होते हैं, और एक लोकसभा में तो अच्छे खासे वोटर होते हैं, लगभग 20 लाख वोटर हैं, 15 से 20 लाख वोटर के बीच में, तो आराम से 5 से 10 करोड़ रुपए एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो एक लोकसभा चुनाव में खर्च होता है। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? और रोल तो है, लेकिन रेलेवेंस क्या है टू इंश्योर दैट इट इज फेयर एंड फ्री इलेक्शंस? देखिए, भारत की जो इलेक्शन कमीशन है, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, इट इज नोन ग्लोबली फॉर इट्स वर्क, बिकॉज इतना बड़ा इलेक्शन कहीं पे होता नहीं है। बहुत सारे EVMs जो हम बनाते हैं या हमारे यहाँ जो है, वो बाकी देशों में भी वो सारे प्रोसेसेस और सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है। इलेक्शन कमीशन अभी टेक्निकली इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी, I mean, it is an independent body. However, it reports to the government because the government of India appoints the election commissioner. लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो गया? नहीं, तो it's like any other corporate. Okay. किसी भी corporate में जो divisions होते हैं, marketing, finance, IT, ये technically ये independently ही काम करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट करते हैं CEO को, है ना, और वो रिपोर्ट करता है चेयरमैन को। तो ये स्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो बरकरार है, और उसके बारे में ज़्यादा शंका जो है वो पूरे विश्व में तो
नहीं है भारत में, ज़रूर कुछ लोगों ने अभी शुरू कर दिया है इसके ऊपर काफ़ी डिबेट कि इलेक्शन कमीशन उतना पार्शियल नहीं है और अदर इट इज़ इम्पार्शियल टू द करंट गवर्नमेंट, बट वो पहले भी होता होगा, वो हमेशा होता होगा। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, अभी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए एक बॉडी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, वन मोर मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज आल्सो देयर। सो इट इज अ फेयर सिस्टम करंटली देन प्रीवियस टाइम्स, ठीक है। अब उसमें भी डिबेट है कि भाई अब एक ही बंदा है तो 1/3 है तो मेजोरिटी तो उसकी होगी नहीं, सरकार की मेजोरिटी। तो इट डिपेंड्स अपॉन विच साइड ऑफ द फेंस यू आर। करेक्ट। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी जो साख है वो पूरे विश्व में मानी जाती है, क्योंकि 100 करोड़ लोगों का जो मतदान लेना, वो पूरा सिस्टम, उसकी सिक्योरिटी, ईवीएम्स को सिक्योर करना, 44 दिन का है इस बार टेनर। तो अगर फर्स्ट ईवीएम 19 अप्रैल को फर्स्ट वोटिंग होगी, लेकिन रिजल्ट 4 तारीख को है, 4 जून, तो उसको सेफली सिक्योर करना उसकी जिम्मेदारी, टैंपरिंग नहीं होना चाहिए, गायब ना हो जाए, खराब ना हो जाए। आप जिस दिन काउंट कर रहे हैं पता चल रहा है वो उसमें काउंट ही नहीं हो पा रहा। पॉसिबल है ना, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो ये सारी बातें मिला के तो उसकी साख पूरे विश्व में है। एक वोटर के हिसाब से देखा जाए तो क्या फैक्टर के हिसाब से वोट देना चाहिए? What are some of the factors we should keep in mind before voting? नहीं, वोट देना चाहिए या देते हैं? देना चाहिए, ठीक है। मतलब इट्स लाइक, सी एवरीबडी हैज अ वेरी यूनिक रीजन फॉर गोइंग टू द बूथ। सबका अपना अपना रीजन होता है, और वोटिंग जो है वो काफी इमोशनल डिसीजन होता है। इट्स नॉट अ रैशनल डिसीजन। हमारा जो शो है largely a lot of youth watch it, right? Maybe first time voters. Correct. So for them, what are the factors that they should consider before voting is the question. Correct. So one is of course performance, comparative performance of the government. But then you're not electing the government per se. You elect an MP or an MLA. तो जो भी कैंडिडेट्स खड़े हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, उनके एसेट्स लायबिलिटीज क्या है, उनका परफॉर्मेंस क्या है, इफ दे वर अर्लियर मिनिस्टर्स और नॉट। करेक्ट। सो हाउ आर दे एज इंडिविजुअल्स एंड व्हाट इज देयर विजन टू डेवलप द कॉन्स्टिट्यूएंसी? करेक्ट। What is the vision they have? Where do they see the constituency in the next 5 years? How IT savvy they are? That's also fairly important in today's world. Correct. क्योंकि AI is changing a lot of things, or is going to change a lot of things. So if a person is not very up to date with IT tools, or if is not already IT savvy, then he or she may not be able to perform his or her duties in the parliament effectively. तो ये broadly 5-6 चीजें हैं जो एक वोटर को ध्यान में रखना चाहिए वोटिंग देने से पहले। And how significant do you think is the rural-urban divide in voting behavior? देखिए, rural-urban divide significant in the sense that if you see the urban seats versus the rural seats, and if you see the last election, BJP has had a better strike rate in urban seats versus rural seats. It does not mean that it was not leading in rural seats. Correct. It was leading in rural seats also, but it had a better or a higher strike rate in the urban seats. Divide as in, देखिए इंडिया में ये डिवीजन तो है ही, तो रूरल पॉपुलेशन जो है उनके डिमांड्स, इश्यूज, एस्पिरेशंस अलग हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम अर्बन सिटीज़ में रहते हुए टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, शायद वो उनकी आज भी डिमांड है। करेक्ट। लाइक बेसिक नेसेसिटीज लाइक रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। आज भी भारत में जल जीवन मिशन चल रहा है टू मेक टैप वाटर अवेलेबल टू ऑल हाउस होल्ड्स। आज भी नहीं है भारत में, है ना। लेकिन लार्जली जो है वो वोटिंग पैटर्न ऐसा नहीं होता है कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है। हालांकि अर्बन सीटों की संख्या कम है, देयर आर ऑलमोस्ट ओनली अबाउट 25-30% urban seats. The rest are rural seats because the India lives in rural areas. India 2 or India 3, like India 3. हाँ, तो गांवों में ही असली भारत बसता है जैसे लोग कहते हैं। तो they are, I mean, the people living there are the kingmakers. तो वहां पे कोई हार के नहीं जीत सकता है चुनाव। लेकिन अर्बन सेंटर में हार के भी चुनाव जीता जा सकता है अगर रूरल एरियाज में या रूरल
पॉपुलेशन आपको सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। और क्या लोग सिमिलरली वोट करते हैं स्टेट और नेशनल लेवल पे, या थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है? देखिए, भारत का जो वोटर है वो काफी मैच्योर है, तो दोनों इलेक्शंस को वो डिफरेंटली जरूर देखता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो दिल्ली का लोग देते हैं। दिल्ली है कि दिल्ली में दोनों बार 2014 और 19 दोनों लोकसभा चुनाव में भाजपा जो है वो 7 आउट ऑफ 7 सीट जीतती है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए 2015 और 2020 में भाजपा की 7 सीटें भी नहीं आती वहां, आउट ऑफ एन असेंबली ऑफ 70, नॉट इवन 10 सीट्स इट एक्चुअली मैनेजेस टू गेट, करेक्ट, which is an example of the fact, or which highlights the fact that these two elections are different. But what is the change in thought process between the two? The change in thought process है कि भाई एक तो आप प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए वोट दे रहे हैं और एक आप चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए वोट दे रहे हैं, जो क्लोजर टू होम है। क्लोजर टू होम है। तो देश को आगे कौन बढ़ा सकता है, देश का विजन किसके पास है, वो आप देखते हैं। और दिल्ली में हो सकता है लोगों को लग रहा हो कि भाई बीजेपी की जो स्टेट लीडरशिप का विजन है, या उसकी जो लीडरशिप है, या उसकी जो परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे बेटर एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो लोकल है। अगर आप उसको ऐसे कहें तो लोकल तो खैर ठीक है, बीजेपी के भी लीडर्स वहां होंगे ही, जो ज्यादा नियर टू होम है। तो इसकी वजह से एक स्प्लिट वोटिंग होता है, जिसको आप कहते हैं स्प्लिट वोटिंग कहते हैं इसको। लेकिन सिमिलर वोटिंग भी होता है, ऐसा नहीं है कि स्प्लिट वोटिंग ही होती है। जैसे महाराष्ट्र है, अब महाराष्ट्र में अभी तो महाराष्ट्र बहुत ही कंफ्यूजिंग है। हाँ, अभी तो पूरा कंफ्यूज स्टेट में है, बट अगर आप 2014 और 19 देखेंगे तो जो लोकसभा में हुआ था वही विधानसभा में भी होता है, क्योंकि ये इलेक्शंस दोनों अलग अलग टाइम पर होते हैं। तो वोटर को बहुत क्लैरिटी होती है कि ये विधानसभा चुनाव है और ये लोकसभा चुनाव। अब आजकल वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत चर्चा है, जिसको साइमल्टेनियस पोल्स भी कहते हैं। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन में दोनों चुनाव एक साथ होते हैं, तो वहां पे क्या स्प्लिट वोटिंग पैटर्न होगा या होता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग टू अंडरस्टैंड। भारत में आज साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑलरेडी होता है 4 राज्यों में, ओडिशा में होगा, आंध्रा में होगा, सिक्किम में होगा और अरुणाचल में होगा। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे जो पार्टी विधानसभा चुनाव में जीतती है उसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में ज्यादा वोटें आती हैं। Okay. तो स्प्लिट वोटिंग पैटर्न, इफ एनी, is observed when the elections are held at different points of time. Correct. When the elections are held simultaneously, जैसे आंध्रा, तो आंध्रा में YSRCP पिछली बार लोकसभा में भी विधानसभा जीती जगन रेड्डी की पार्टी, और लोकसभा में भी उसको सबसे ज्यादा सीटें आई। नवीन पटनायक जीते, लोकसभा में उनको सबसे ज्यादा सीटें आई। यहाँ पे स्प्लिट वोटिंग जो है वो उतना एविडेंट नहीं है। यहाँ रीजनल पार्टी को फायदा मिल जाता है, लोकसभा में ज्यादा सीटें जीतती है। करेक्ट। ये एक इमोशन ड्रिवन है, क्योंकि एक वो फर्वर जो बोलते हैं ना कि वो जो लीडरशिप दिखाई देता है कि या ओके आई वांट टू वोट, एंड देन यू, जब गैप रहता है, यू एटलीस्ट हैव द टाइम एंड स्पेस टू ब्रीथ एंड बी लाइक कि लॉजिकली मे बी नॉट, करेक्ट, बट सेम टाइम वो इमोशन में यू कैन काइंड ऑफ, इमोशन है, इमोशन जरूर है, क्योंकि आप जैसा कह रही हैं कि आपके पास वक्त नहीं होता ये लॉजिकली डिटरमिन करने के लिए कि कौन सा बेटर है, कौन सा सही है। और एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि अगर नॉर्मल इलेक्शन में वी हैव टू जस्ट प्रेस वन बटन ऑन एन ईवीएम मशीन। करेक्ट। In a simultaneous election, we have to press 2 buttons because one to elect an MP and one to elect an MLA. Now, in a similar room, 2 EVMs are placed. Yeah. So, normal tendency, human psychology is to press the same buttons. Yeah. Or as you're saying, maybe the emotion or maybe the drive to go to the polling booth is determined by one factor. Exactly. One factor, one of these two, and then when you go there, you have to press the 2 buttons. So subconsciously, yes, subconsciously you tend to press the same buttons, and that is why a lot of opposition, in fact, most of the opposition parties are opposing this one nation one election. Correct. कि इससे जो है सेम बटन प्रेस होगा और बीजेपी को जो है इसका एडवांटेज हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकली हम ये देख रहे हैं कि इससे रीजनल पार्टीज को एडवांटेज हो रहा है। जगन रेड्डी की पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी, सिक्किम क्रांति मोर्चा, इन दलों को फायदा हो रहा है
करेक्ट. तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर ये आएगा कि कौन सा ईवीएम पहले प्लेस्ड है. I think there is no rule framed for Whatsoever, this. yeah. So when they think about it, because it is currently only in 4 states, it is not clear. So जब होगा कभी अगर होता है तो उस समय ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है. And what role does public funding play? In the sense that the public funding of political parties, how does this affect the transparency in campaigns, for example? जैसे अगर पब्लिक फंडिंग की बात करें तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फंड नहीं करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, बिकॉज लिमिट है सबकी. करेक्ट. हम और आप कितना फंड कर सकते हैं vis-a-vis कॉर्पोरेट्स. एग्जैक्टली. vis-a-vis कॉर्पोरेट्स. सो अगर भारत की पर कैपिटा इनकम ही 2 लाख रुपए है तो उसमें से कोई फंड क्या करे पॉलिटिकल पार्टी को. HNIs, etc. करेक्ट. सो HNIs, जो यू कैन से द रिच, the upper middle class, they do tend to fund political parties, but it's not a very big amount. Okay. It's not a very big amount because we were talking about 60,000 crores and we are talking about electoral bonds of 16,000 crores अभी जो निकला है. तो उसमें individuals ने कितना खरीदा है, HNIs ने कितना खरीदा. Because the minimum, I think not the minimum, I mean minimum is 1,000 also, but individuals का रोल धीरे धीरे जो है, खास करके यंग कैंडिडेट्स जो हैं वो लोग क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं. विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में अगर किसी के पास फंडिंग की जरूरत है तो वहां पे लार्जली जो डोनर्स होते हैं वो पब्लिक होती है. वहां कॉर्पोरेट्स नहीं होते. तो इट इज स्लोली एंड स्टेडीली कैचिंग अप more in urban than rural, and more amongst the young candidates like Kanhaiya was a candidate. Kanhaiya, I think is his name. Famous candidate from JNU. From JNU and the Congress party. He had run a public funding campaign. Even Aam Aadmi Party, when it had come originally, it was doing public funding. On its website, you could go and donate. But that is not available today, perhaps. Or that is not as transparent as today. Because once you grow, you realize that this amount is probably just a paltry sum. And the amount you can generate or raise from corporates is significantly higher. Correct. So if you had to break down this 55,000 crores, we assume, okay, where does a large chunk of it come from? No, it'll again be corporates only. It is largely corporates. तो अगर 55,000 crores है तो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये एक इलेक्शन का है. One election. Now in India, in a 5-year cycle, there are 30 Vidhan Sabha elections also. Roughly 30. So 31 elections होता है. तो since a Lok Sabha is composed of Vidhan Sabhas, आप ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि जो 30 विधानसभा चुनाव होते हैं, लगभग 30, उसमें भी यही अमाउंट स्पेंड होता है. Because it is the same election, but held at different points of time. So the amount will be roughly the same. और इसके ऊपर कोई एस्टिमेट नहीं है किसी का, बट मेरे हिसाब से रफली सेम होगा. Then it becomes 1,10,000, 1,20,000 crores in a 5-year cycle is the amount which is spent. और अगर आप देखेंगे तो 5 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड से लगभग 12,000-13,000 करोड़ रुपए रेज हुए. So which means white component largely is perhaps just 10% of the entire funding. So cash is still king when it comes to electoral funding, and a lot of opaqueness, quid pro quo deals are there, but there's no clear solution for it as to how do we prevent the usage of cash and how do we encourage corporates to use white channels for funding. Some of the people say that let's use a स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, यानी सरकार हर एक कैंडिडेट को के खर्चे को फंड करे तो हर सीट पे 50 लोग खड़े हो जाएं. वी आर नॉट अ टू पार्टी सिस्टम, वी आर अ मल्टी पार्टी सिस्टम. Then hundreds of people could just contest on a seat, get the money, 95 lakhs let's say for a Lok Sabha election, and just run off. So इतने आसान solutions इसके नहीं है. It's complicated. It's fairly complicated. And what do you think is the role of social media to kind of influence, right, voter tendency कि एक पार्टी की तरफ you थोड़ा lean slightly, especially क्योंकि you mentioned earlier that
real bulk of India is in rural, and social media penetration is not that high. But still, the social media campaigns that are run digitally are enormous. So, what do you think is the influence on voter behavior there? लेकिन नैरेटिव सेटिंग के लिए जरूर सोशल मीडिया का यूज होता है और युवा को जरूर वो इन्फ्लुएंस करता है. यूथ, सोशल मीडिया जो यूथ है उसको इन्फ्लुएंस करता है. पार्टीज जो है के पास बहुत बड़े बड़े बजट्स भी हैं आज की डेट में सोशल मीडिया कैंपेन्स के लिए. लेकिन सोशल मीडिया कैंपेन्स या मुझे नहीं लगता है कि कोई चुनाव डिटर्मिन करता है, क्योंकि जैसा आपने कहा जो रूरल इंडिया है वो आज ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे उतना नहीं है जितना शायद अर्बन इंडिया होगा. लेकिन जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो वो भी दो प्रकार के हैं. दो देयर आर टू कैटेगरीज. वन इज अ पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक. Anybody can see whatever is being posted there, comments, etc. Now, WhatsApp is a controlled or a private social media platform. Yeah. What you and I chat, nobody knows, correct? इसका impact बहुत ज़्यादा है. Numbers के हिसाब से approximately. अभी WhatsApp मुझे लगता है कितने, I'm not sure, but easily 50 crore people will have WhatsApp on their phones. 50 crore plus. तो जिस भी पार्टी के ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या जिस भी पार्टी का कम्युनिकेशन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स इज स्ट्रॉन्ग, दैट पार्टी हैज एन एडवांटेज बिकॉज व्हाट्सएप का पेनिट्रेशन रूरल में भी बहुत है. है, ठीक है, अच्छा खासा है. बाकी और व्हाट्सएप लोग बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं कंपेयर टू अ फेसबुक और अ इंस्टा और अ ट्विटर, बिकॉज ऑन फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर नाउ पॉलिटिकल एड्स एंड कैंपेन्स हैव बिकम फेयरली स्ट्रिक्ट, सो पीपल हैव मूव्ड टू व्हाट्सएप. और व्हाट्सएप पेनिट्रेशन ऐसा है कि अगर आप अपना मैसेज बूथ लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं तो जो स्ट्रॉन्गर पार्टीज है वो 24 घंटे में पहुंचा सकते हैं थ्रू ब्रॉडकास्ट लिस्ट एंड ग्रुप्स. सो जो कंटेंट हमें मिलता है, बहुत सारा कंटेंट आता है, वो कोई ना कोई तो क्रिएट कर रहा है. करेक्ट हो, हमारा बैठ के तो नहीं लिख रहे, somebody is creating that content. So there are teams which, I mean across parties, which create content. Then WhatsApp or a Signal or a Telegram is used to disseminate this content. तो जो इस और क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म कैंपेन को आप काउंटर कर सकते हैं. ट्विटर पे आज एक्स पार्टी ने कुछ चलाया तो वाई पार्टी उसके खिलाफ चला सकती है. लेकिन क्योंकि ये कंट्रोल्ड प्राइवेट सोशल मीडिया है, इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? You can't. Unless you come to know of some viral content which is propagating a misinformation or something against you. फिर भी आप सिर्फ उसका जो तोड़ है वो अपने ग्रुप्स में ही चला सकते हैं, राइवल के ग्रुप्स में नहीं चला सकते, क्योंकि आपको एक्सेस ही नहीं है उन व्हाट्सएप ग्रुप्स का. समझे? तो ये व्हाट्सएप पे पूरा गेम हो गया है अभी. बोलते ना कि व्हाट्सएप पे वायरल हो गया. The most common thing that you hear is WhatsApp पे वायरल हो गया. और उसको कंट्रोल करना उसको बहुत डिफिकल्ट है. इफ यू सी 2014 इलेक्शन was still you could say that the role of Twitter, Facebook, Insta was not there, I think, at that point of time. नहीं था 2000. इतना नहीं होगा. हाँ, correct, हाँ. बहुत ज्यादा था क्योंकि top leaders of opposition parties were not there on these platforms. हाँ, Rahul Gandhi came very much later. Rahul Gandhi came in April 2015, I guess. तो बीजेपी को वहां पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज था. लेकिन बीजेपी को ये समझती है कि ये कोई ऐसा आविष्कार नहीं है कि उन्होंने किया है. करेक्ट. It is very easy to understand the dynamics of social media and to do a Twitter trend or chat bots, etc., etc. तो जैसे ही बाकी पार्टियों ने अपना प्रेजेंस जो है स्ट्रॉन्ग कर लिया ट्विटर और फेसबुक और इंस्टा पे, बीजेपी वहां से निकल करके व्हाट्सएप में चली गई. और आज तक जो दूसरी पार्टियां हैं उनका इतना मजबूत व्हाट्सएप नेटवर्क नहीं है. मशीनरी जो कहते हैं इतना मजबूत नहीं है. तो मैसेज तो ठीक है बट मशीनरी भी आपको चाहिए, मीडियम चाहिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. वहां कहीं ना कहीं वो अभी थोड़ा आगे चल रही है. कितना, how many users do you think BJP must be reaching? Very difficult to say, but statewide easily lakhs of users when we used to work or do campaigns. I mean the IT teams claim that they have access to at least the booth level. ठीक है, वहां भी थोड़ी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं और एक्चुअली ग्राउंड पे शायद उतना ना होता होगा, लेकिन किसी और पार्टी से उसका जो स्ट्रक्चर है
वो ज़्यादा सुदृढ़ या मतलब स्ट्रांग है, क्योंकि जब दूसरी पार्टीज के साथ भी काम किया है तो वो तो 3 महीने 6 महीने पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने की बात है। हाँ, करेक्ट। ग्रुप्स बनाना इजी नहीं होता, तब उसको मेंटेन करना, लोग एग्जिट करते हैं, इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। And now all this is irrelevant if the voter turnout is less, correct? So what are some of the trends that you have observed for voter turnout, and what is the reason for the high participation or low participation in either case? तो जैसे अगर अर्बन और रूरल लेंगे तो अर्बन में वोटर टर्नआउट कम होता है, क्यों? रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है। उसका कारण ये है कि हमारी आपकी लाइफ जो है वो सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग कोई स्कीम के बेनिफिशियरी नहीं है, करेक्ट। सो सिंस द अर्बन वोटर लार्जली, ऑफ कोर्स अर्बन पॉकेट्स में भी जो 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 स्लम्स में लोग रह रहे हैं उनका टर्नआउट ज़्यादा होगा जो बिल्डिंग्स में रह रहे हैं उसके कंपैरिजन में, क्योंकि हमारी लाइफ उतनी सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारा चलता जाएगा, हमारा चलता जाएगा, कोई भी सरकार आए जाए। तो एक टेंडेंसी होती है वोटर में कि ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, चलता है सॉर्ट ऑफ। तो हमने बॉम्बे में देखा हुआ है, वोटर टर्नआउट इन BMC एंड ऑल इज व्हाट 50, नॉट इवन 50% परहैप्स। एक अर्बन में एक और इशू होता है माइग्रेशन का भी, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेटेड लोग हैं, अगर उन्होंने अपना वोटर ID कार्ड नहीं बना रखा है तो उससे भी, उसकी वजह से भी जो एक एंथुजियाज्म है वो कम होता है। वहीं रूरल एरियाज में एंथुजियाज्म ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ डिपेंडेंस लोगों की सरकार पे ज़्यादा है। A lot of people are beneficiaries of some or the other scheme. एंड वो होप का भी है ना कि अगर ये आएगा एंड ही फुलफिल्स द मैनिफेस्टो, माय लाइफ विल बिकम बेटर। सो बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट, ठीक है ना, ऐसा आप कह रहे हैं, तो माय लाइफ विल बी बेटर, सो फॉर बेटरमेंट, करेक्ट। सो एक उत्साह वहाँ ज़्यादा होता है, इधर फॉर और अगेंस्ट, इधर फॉर और अगेंस्ट। महिलाओं में अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जो वोटर टर्नआउट है, इनफैक्ट वुमेन आर बिकमिंग kingmakers in many states and even national election, women turnout is gradually becoming more than male turnout. Why? उसका कारण ये है कि because of awareness levels, because of increase in literacy levels, the women have emerged as a vote bank. So बहुत सारी पार्टीज आप देखेंगे वुमेन के मैनिफेस्टो अलग से हैं, गारंटीज वुमेन के लिए अलग से हैं, और ऐसी धारणा है कि महिला मतदाता जाति से ऊपर वोट करती है। सो लॉ एंड ऑर्डर बिकम्स एन इशू फॉर वुमेन, ऑफ कोर्स, लाइक इन यूपी सिक्योरिटी। यूपी द सेकंड टर्म व्हिच बीजेपी वन वाज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ अ बेटर लॉ एंड ऑर्डर। फिर जैसे LPG योजना है, वो महिलाओं को ज्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि पुरुष तो खाना बनाते ही नहीं गाँव में, या कहीं भी नहीं बनाते हो गाँव में, क्या बात है। और आपका आवास योजना जो है, घर जो है, वो महिला के लिए एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस, शादीशुदा महिला के लिए एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका होता है। तो महिला वोट इसलिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है पार्टीज़ के लिए। अगर वोटर टर्नआउट जनरली ज़्यादा होता है, यानी हाई होता है पहले के कंपैरिजन में, यानी पिछले चुनाव के कंपैरिजन में, तो उसको एक एंटी इनकम्बेंसी वोट माना जाता है, उसको एक नाराजगी का वोट माना जाता है। इफ पीपल टर्न आउट इन सिग्निफिकेंटली हायर नंबर्स देन द प्रीवियस इलेक्शन, देन इट इज एन इंडिकेटर दैट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट माइट लूज। और अगर टर्नआउट कम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों में उतना उत्साह नहीं है इस सरकार को गिराने का, करेक्ट, उतना एंगर नहीं है, दैट मेक्स सेंस, डिसइल्यूजनमेंट है शायद, लेकिन वो एक एंगर लेवल पे नहीं है कि बाहर निकल कर हम इसको हटा दें। एक्शनेबल पॉइंट है कि मैं जाके वोट करके निकाल दूं। हाँ, वो मिसिंग होता है। हालांकि इसमें भी एक चीज और जो ध्यान में रखने वाली बात होती है कि इलेक्शन कमीशन भी बहुत सारा एफर्ट्स डालता है वोटर टर्नआउट इंक्रीज करने के लिए। अभी यूथ में इवेंट्स होते हैं, रेडियो टेलीविजन पे कैंपेन्स चलाए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जो टर्नआउट है जिसको आप एक ऑर्गेनिक इंक्रीज कह सकते हैं, इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इलेक्शन कमीशन एफर्ट्स। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब इंक्रीज होता है तो सरकार नॉर्मली बदल जाती है, ये अगर ऑर्गेनिक इंक्रीज लिमिट्स के अंदर है तो सरकार नहीं बदलेगी। प्लस माइनस 1 or 2% is not a significant increase, but अगर
4-5% बढ़ता है तो नॉर्मली इनकम्बेंट के लिए इट्स नॉट अ गुड न्यूज़. So 2014 was the voter turnout significantly higher? I don't recollect the number, but it was high because normally क्या it's a natural growth. तो वोटर टर्नआउट बढ़ता ही रहता है. पिछली बार भी ज्यादा था, लेकिन सरकार तो वही रही, है ना. तो क्योंकि जो दायरा था बढ़ने का, वो इज अ नॉर्मल इंक्रीज के दायरे में था. इसकी वजह से and there is also an anti incumbency versus a pro incumbency vote. तो उसका भी एक एंगल आ जाता है इन सारी बातों में. And what role do things like unemployment, GDP growth, inflation play when political parties are designing their electoral campaigns? Like, ये जो buckets है उन पे कैसा emphasis रहता है typically? देखिए क्या है कि हमारे इलेक्शन डिस्कोर्स में, एनालिसिस में इश्यूज पे बहुत फोकस रहता है. और अगर आप 1952-51 से लेकर के आज तक कोई भी चुनाव भारत में कहीं भी देखेंगे तो महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, जो आपने मुद्दे बताए, करप्शन, गरीबी, ये हर चुनाव में यही मुद्दे होते हैं लार्जली. इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं, बट लार्जली दीज आर इश्यूज, सेम इश्यूज. अब अगर आप इश्यूज पे बहुत इंपॉर्टेंस दें तो आप बिगर पिक्चर को मिस कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इश्यूज पे वोटिंग होती नहीं है. लाइक वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, इशू इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर अ पर्सन टू गो आउट एंड वोट. Correct. It can be development, it can be change, it can be betterment, it can be because I like a leader, it can be a local candidate, it can be caste, it can be because I'm a beneficiary. Many things. Now, let's say unemployment. So, there is unemployment. Youth is facing unemployment, but still the government is continuously coming back, let's say. Correct. Even in the last state elections, we saw कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था और सरकार वापस आई. तो इसके 2-3 मायने हो सकते हैं कि या तो ये मुद्दा है ही नहीं, इसको विपक्ष ने बना दिया है. पॉसिबल, आई एम सेइंग, आई मीन वी आर जस्ट डिस्कसिंग, सो पॉसिबल. दूसरा है कि वोटर को विपक्ष जो है उसके कैंपेन में, या वो जब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कैंपेन करता है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. जैसे अभी कांग्रेस ने 30 लाख गवर्नमेंट जॉब्स का वादा किया है यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए. इट्स अ बिग प्रॉमिस, बट इट मे नॉट नेसेसरीली लीड कांग्रेस पार्टी टू विन. It may not translate. It may not translate into votes. Why? Because some youth may not trust that Congress party will be able to do this, or may not have confidence in the leadership. और एक और एंगल जो आता है वो आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट किसके लिए मुद्दा है. हम जब बात करते हैं तो आज अगर सर्वे करने वाला हमारे आपके पास आता है, भगवान की दया से हम लोग ठीक ठाक हैं, जॉब है, हाँ. कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और हमसे पूछता है मुद्दे क्या हैं. हो सकता है हम बोले अनएम्प्लॉयमेंट. करेक्ट, बिकॉज दैट वी आर रीडिंग एंड सीइंग, बट वी आर एम्प्लॉयड. दैट्स द डिलेमा और द डाइकोटॉमी ऑफ दिस. Unless unemployment becomes the main issue for the unemployed, it does not matter in any election. Very interesting. Unless poverty becomes the main issue for Garib, unless महंगाई becomes the main issue for Garib, if it is an issue for you and me, it does not matter in election, because we are not going to vote on that issue. तो शायद आज कहीं ना कहीं यूथ जो है, एक लार्ज सेक्शन ऑफ यूथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा ही नहीं है. कुछ और मुद्दा है, हिंदुत्व हो सकता है, नेशनलिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लीडरशिप हो सकती है, शायद. इसके ऊपर रिसर्च नहीं है, लेकिन और जब डिजाइन कर रहे हैं कैंपेन्स तो ऑफ कोर्स ये बातें होंगी. जब जो गवर्नमेंट में है वो इन मुद्दों पर उन्होंने क्या किया है उसको हाईलाइट करेंगी, और आगे का रोड मैप क्या है, और विपक्ष जो है वो हाईलाइट करता है कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ और उसका मैनिफेस्टो प्रॉमिस में जब वो उसको कैसे सॉल्व करने वाला है. Or now in the lead up to 2024 elections, लोक सभा elections, क्या issues ऐसे highlight हो सकते हैं आपके opinion में? What will the issues largely be? Will it be the same जो अभी buckets discuss किए कि
one or two others. लार्जली यही इश्यूज हैं अभी भी भारत में, लार्जली यही इश्यूज हैं. विकास एक इशू है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक इशू हो सकता है, बट दैट इज लिंक टू करप्शन. क्या किसी पार्टी को इतना पावर देना चाहिए, ये एक मुद्दा हो सकता है, मुद्दा बन सकता है, बनाया जा सकता है विपक्ष द्वारा. बट लार्जली दीज आर कॉल्ड ब्रेड एंड बटर इश्यूज. सो दीज इश्यूज largely remain, and we are a developing country. Till we become a developed economy, these issues are largely going to remain. Opposition का काम जो है वो सिर्फ issues को रेज करना नहीं है. एक साउथ कोरिया के एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो कहते हैं कि आज विपक्ष जो है वर्ल्ड ओवर एक ये इस ट्रैप में फंस गया है, that they think that only to oppose is opposition's job. ठीक है, अपोजिशन इज फाइन, बट यू ऑल्सो हैव टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव. करेक्ट. दैट नीड्स टू बी डन. सो इश्यूज तो ठीक है, लेकिन आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? एंड एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, आपका क्या ओपिनियन है कि व्हाई हैज कांग्रेस नॉट कम बैक सिंस 2014 एंड व्हाई इज बीजेपी स्टिल टू मेक दैट मार्क इन सदर्न इंडिया? क्या है, जैसे इलेक्शंस अभी प्रेसिडेंशियल स्टाइल अगर होते जा रहे हैं तो लीडरशिप के ऊपर बहुत फोकस है लोगों का. 2019 में 37% वोटर्स वोटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टीरियल फेस, विच द हाईएस्ट. सो अगर आपके पास लीडर मजबूत नहीं है, सो 37% ऑफ द वोटर्स वोट ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप. तो अगर आपके पास लीडर मजबूत नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने, तो ये 37% वोटर जो है कांग्रेस पार्टी के टारगेट एड्रेसेबल मार्केट से एक्सक्लूडेड है, क्योंकि आपका लीडर ही नहीं है. इस बार आपने बताया ही नहीं है कौन लीडर है, पिछली बार भी आपने बताया नहीं था कौन लीडर है. समझ रहे हैं आप? तो 37% में एक लीडर ही गायब है. इफ आई हैव टू बाय अ शर्ट एंड आई गो टू शॉपर स्टॉप एंड इट्स सेलिंग जस्ट वन शर्ट, व्हाट डू आई डू? इफ आई हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, आई विल बाय इट. करेक्ट. तो लीडरशिप वैक्यूम है कांग्रेस पार्टी में, और वो एक विजन प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है देश को. अपोज तो कर रहा है, अपोज, बट इट्स नॉट एबल टू प्रेजेंट अ विजन एंड अर्न द क्रेडिबिलिटी और द ट्रस्ट ऑफ द पीपल दैट दे विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस विजन. What do they stand for is not very clear. How will they do things different from BJP? That's also not very clear. Correct. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है. क्योंकि मोस्ट कॉमन द फ्रेज और द सेंटिमेंट इज कि ऑपोजिशन है ही नहीं. हु इफ नॉट मोदी देन हु? हाँ, तो जिसको टीना फैक्टर बोलते हैं, सॉर्ट ऑफ देयर इज नो अल्टरनेटिव, एक फैक्टर होता है, तो वो इसमें ही कैप्चर हो जाता है. अगर 37% लोगों के पास अल्टरनेटिव ही नहीं है और वो सबसे बड़ा सेगमेंट है, और इसको अगर वोट शेयर में ट्रांसलेट करते हैं तो बीजेपी के पास 37% वोट शेयर था 2019 में, और कांग्रेस के पास 19% था. सो 18% का लीड था बीजेपी. अब अगर आप जैसे इंडिया टुडे, मूड ऑफ द नेशन जब ये पूछता है लोगों से कि आप किसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, तो उसमें जो गैप है राहुल और मोदी के बीच में इज 40%, 55 वर्सेस 14 और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, 40%. We'll add a ticker with the right. Yeah. So 40%. So 37 into 40, because that's the lead. 37% people are voting for leadership, and there the lead of BJP is 40%. So 40 into 40 roughly is 15-16% vote share lead is just because of Modi, of this 18%. So it's all about leadership. It's all about leadership. तो यही एक जो मुद्दा है, यही एक जो इशू है, वो आज डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. 1 out of every 3 voter who voted for BJP in 2019 voted because of Modi. And that's largely the lead. 11 करोड़ वोट का लीड था एनडीए के पास, और 8.5 करोड़ वोट जिसको मोदी फैक्टर कहते हैं उसकी वजह से बीजेपी को मिला था. सो दैट इज रफली अगेन ऑलमोस्ट 80% ऑफ द लीड ऑफ बीजेपी. Will this be 100% this time? हो सकता है. The second half of the question was why is BJP not making a mark in the southern states of India?
देखिए नॉर्थ साउथ डिवाइड है। बीजेपी क्या वन कंट्री, जब वन नेशन वन पोल, तो वन नेशन वन जीएसटी, मतलब एक नेशनलिज्म की बात करती है, तो पूरे भारत को वो एक नजरिए से देखती है। हिंदुइज्म, हिंदुत्व, नेशनलिज्म, उसके हिसाब से। समहाउ साउथ में उतना ये चलता नहीं है। वहां पर यू नीड टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ द वोटर एंड नॉट ओनली बीजेपी, इवन इफ यू सी नेशनल पार्टी, इवन कांग्रेस वाज इन पावर। ऐसा नहीं था कि सदर्न इंडिया में नहीं, एक टाइम पे ठीक ठाक था उसका पोजीशन, लेकिन अभी कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी भी वहां पर उतना अच्छा नहीं कर पाई। तो साउथ ऑफ इंडिया इट्स मोर रीजनल पार्टीज, बट द फैक्ट व्हिच हेल्प्स बीजेपी इज दैट इन ऑल द स्टेट देयर आर डिफरेंट रीजनल पार्टीज एंड ऑल ऑफ देम आर नॉट टुगेदर. All of them are either with, and some of them are with BJP, some of them with Congress, some of them are non-aligned. So और वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की पॉलिटिक्स चाहिए, एक डिस्ट्रस्ट भी है, क्योंकि साउथ में कहीं कहीं लगता है कि भाई इंडिया इज रन बाय नॉर्थ इंडियंस. एक ये भी नैरेटिव है, एक ये भी धारणा है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो नॉर्थ इंडिया से ही रहे हैं, एक्सेप्ट दो लोग आपके देवेगौड़ा जी और पीवी नरसिम्हा राव जी. और क्योंकि डेवलप्ड भी साउथ ज्यादा है, जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो वहाँ पे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका. लिटरेसी लेवल इज आल्सो हाई. लिटरेसी लेवल इज आल्सो हाई. केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट. या सो कहीं ना कहीं ये भी धारणा है कि लेफ्ट एक सब्सिडाइज कर रहा है नॉर्थ को इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री, बट पॉलिटिकल पावर नॉर्थ के पास है. करेक्ट है ना. तो ये सारी बातें हैं, बट धीरे धीरे दे आर ट्राइंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ द यूथ अगेन हैव सीन दिस एंटी सेंटर साइड ऑफ पॉलिटिक्स, एंटी सेंटर सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द साउथ. So the youth is also now getting fed up of this Dravidian politics or a left versus Congress politics of Kerala and Tamil Nadu. So that's why the BJP or the Prime Minister is trying to make inroads there, but it will take some time to earn the trust of the people there. You said the youth, right? The youth is a factor. I was discussing earlier कि huge part of our audience youth ही है. This time 1.89 crore first time voters are there, of which 85 lakh are women. इस पे थोड़ी चर्चा हो चुकी है कि what is the role of women, but for first time voters especially, for these 85 lakh women, उनका क्या रोल रहेगा इस इलेक्शन में? नहीं, रोल तो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि 85 लाख भी अगर आप ट्रांसलेट करें इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर तो इज ऑलमोस्ट 1% वोट शेयर. करेक्ट. So in many constituencies where there is a tough contest, this 1% also becomes fairly important, along with the overall women vote block. So first time voters, again what happens is that they do not carry any baggage. Correct. तो historical उतना baggage नहीं है उनके पास. Plus जब आप ये 10 versus 70 करते हैं या कुछ भी आप बहुत पुरानी बात करते हैं, तो फर्स्ट टाइम वोटर ने वो देखा ही नहीं है, वो जो रिलेटेबिलिटी है वो नहीं है, वो कनेक्ट नहीं कर सकता है इस चीज को. और बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स ने अगर 18-19 हुए तो मतलब 2005 में अगर बॉर्न हुए तो यही 2 सरकारें देखी हैं. 10 साल कांग्रेस की और 10 साल बीजेपी की. सो इन अ वे दे आर द एक्चुअल जज of who has performed better. Exactly. Without any bias or preconceived notions. However, ठीक है 1 to 18 में कितना politically active और ये रहे होंगे वो अलग बात है. और young people also opt for, or rather they like change. Correct. अगर आप 18 से 19 साल देखेंगे जो लोग हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी होते हैं, कई सारे लोग रेबेलियस होते हैं. करेक्ट. अपने मन की भी करते हैं बहुत सारे लोग. बट आर दे एंथुसियास्टिक वोटर्स एज वेल कि फर्स्ट टाइम वोटिंग मुझे करना ही है? नहीं, एंथुसियाज्म होता है बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन आज ही मैं देख रहा था
आई थिंक महाराष्ट्र की बात थी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स में से भी जितने एलिजिबल हैं उसमें से सिर्फ 1/4 लोग ही लोगों के पास ही वोटर कार्ड है। अच्छा, वोटर कार्ड है। तो वो भी एक डिस्कनेक्ट है ना, कि अगर आप अर्बन सेंटर में हैं तो पहले से ही एक बात है कि भाई हमारी लाइफ पे उतना हमारी लाइफ उतनी डिपेंडेंट नहीं है गवर्नमेंट पर, है ना। अगर आप अर्बन सेंटर में लाइकली रह रहे हैं तो बहुत सारे फैक्टर हैं, अभी देखना पड़ेगा कि whether they turn out in high numbers or not, but they could play a crucial role in many close contests. Okay. One more important thing that has come up कि those who are above 85 years और जिनका disability ratio 40% से ज़्यादा है वो वोट घर से कास्ट कर सकते हैं. Do you think this will be a factor? Yeah, this will improve the turnout of 85 plus year people because अगर वो लोग बूथ पर जाकर के वोट नहीं डाल सकते हैं तो एटलीस्ट अगर आपके घर पे इलेक्शन कमीशन ये इंतजाम कर रहा है कि आप वोट डाल दीजिए तो आपका टर्नआउट फिर 100% होना चाहिए बिकॉज आपके पास लार्जली कोई रीजन नहीं है, लेट्स से फॉर द लैक ऑफ एनी वर्ड, कि आप वोट डालने ना जाएं। तो 85 से ऊपर जो एज ब्रैकेट है उसका टर्नआउट जो है इस कारण से इम्प्रूव हो सकता है बट फैक्टर नहीं होगा। नहीं, फैक्टर एज इन 60 से ऊपर का तो नंबर मुझे ध्यान है दैट इज मोर देन 10%, सो लेट्स से इट इज 5% ऑफ पॉपुलेशन। 5% ऑफ पॉपुलेशन आल्सो इज नॉट लेस, करेक्ट, बट फैक्टर तब बनता है जब एक तरफ लीन हो रहा है वोट। और एक और फैक्टर जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी बात करते करते ध्यान में आ गया है, वो है राम मंदिर इनॉग्रेशन। व्हाट हैपेंस इज एज यू ग्रो ओल्ड योर लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी इंक्रीजेस. Yes. You become more religious because you see end very nearer. This Ram Mandir issue is my personal belief is that it's going to have a higher impact on senior citizen category. This category. 60 plus, 85 plus also of course, correct. यहाँ पे वो impact हो सकता है इस मुद्दे का, क्योंकि 85 से ऊपर जो व्यक्ति हैं उनके लाइफ में अब उतार चढ़ाव उन्होंने देख लिए, सेटल हैं उनके बच्चे, परिवार सेटल है, व्यूज सेटल हैं, वो सेटल्ड हैं। तो कईयों का ये हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया because we are in my lifetime I saw it. In my lifetime I saw it. So this could play a role there as well. Recently CA law भी पास किया गया है. For our audience, can you explain what CA is and उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, सीए जो है वो एसेंशियली क्या कहता है कि जो भी हिंदू और 5 और 6 और माइनॉरिटीज़, जो बाकी के 3 जो हमारे नेबर्स हैं, जो एसेंशियली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हिंदूज़ प्लस 6 प्लस क्रिश्चियंस प्लस पारसीज़ और भी 1-2 कैटेगरीज़ हैं मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करके, अगर उनके ऊपर रिलीजियस परसिक्यूशन है और वो यहाँ पे सेटल हुए हैं तो उनको जो है वो सिटीजनशिप भारत देगा। क्योंकि हिंदुइज्म जो है और किसी कंट्री में रिलीजन तो है नहीं, परहैप्स एक और नेपाल में होगा। तो भारत की सरकार का ये लॉजिक है कि अगर विभाजन के टाइम 1947 के टाइम जो हिंदूज वहाँ सेटल हो गए और वो उन्होंने पहले अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है या उनको फोर्स किया गया है कन्वर्जन के लिए और वो यहाँ पे आ गए हैं 2014 से पहले, तो वो और जाएंगे कहाँ? उनके लिए यही एक राष्ट्र है जो उनको शरण सॉर्ट ऑफ दे सकता है। अब ये जो पूरा नंबर है, इट्स नॉट ह्यूज। दिस नंबर इवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्टैंडर्ड्स इज जस्ट 30,000 के करीब लोग हैं। 30,000 लोग हैं। तो इसका कोई खास इम्पैक्ट इस चुनाव में नहीं हो सकता, नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। हैं 2-3 राज्य जहां होगा, उस पर अभी हम लोग आएंगे। तो बाकी राज्यों में 2-3 राज्यों को छोड़ करके इसका इम्पैक्ट नहीं। हाँ, ऑपोजिशन इसको जरूर मुद्दा बनाना चाह रहा है कि आप मुस्लिम्स को भी क्यों नहीं दे रहे हैं या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें। तो वो गवर्नमेंट का लॉजिक है कि भाई इस्लामिक कंट्रीज में कैसे मुस्लिम्स को रिलीजियस परसिक्यूशन हो सकता है, क्योंकि यही आधार है इसका। इकोनॉमिक कारणों की वजह से वो हो सकता है आए यहाँ पर, दैट इज अनदर कैटेगरी, उसके लिए अलग से एक प्रोविजन है। अब जो बॉर्डर
स्टेट्स हैं एसेंशियली आसाम एंड बंगाल, जहाँ पे बहुत सारा माइग्रेशन इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बांग्लादेश से। वहाँ पे ये मुद्दा ज़्यादा हावी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर विपक्ष जो है इसको एनआरसी से जोड़ रहा है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, जिसमें जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और जो इन कैटेगरीज को बिलोंग नहीं करते हैं उनको भारत जो है वो डिपोर्ट भी कर सकता है, भेज सकता है वापस जिस देश से आए, या उनको अलग कैंप्स में रखा जा सकता है क्योंकि वो इकोनॉमिक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं भारत के लिए। भारत के नहीं है वो लोग इकोनॉमिक रीजन से आए हैं। तो बंगाल में ये बड़ा मुद्दा है बिकॉज बंगाल में माइनॉरिटी पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 30% एंड दैट इज अ लॉयल वोट बैंक ऑफ टीएमसी, कांग्रेस एंड लेफ्ट। तो वहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम इशू इसकी वजह से हो जा रहा है और दोनों ही राजनीतिक दल इसको उछाल रहे हैं। और वहाँ पे एक मटुआ समाज भी है जो एससी कैटेगरी को बिलोंग करता है, जो हिंदूज बांग्लादेश से आए, जो काफ़ी टाइम से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें थोड़ा एंथुजियाज्म उन वोटर्स में आ सकता है। हालांकि a lot of Matuas already have voter ID cards. So you cannot have a voter ID card unless you are a citizen of India. Exactly. So it's fairly complicated. वहाँ भी इतना सिंपल नहीं है क्योंकि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है और आप इसमें अप्लाई करते हैं तो फिर कैसे, तो आप ये मानते हैं कि आप सिटीजन नहीं है, यू हैव टू गिव दिस अप फर्स्ट, करेक्ट। थोड़ा वहाँ कॉम्प्लिकेशन है। और आसाम में क्या है कि आसाम में काफ़ी इसका विरोध पहले से ही है, शुरू से है। वहाँ पे जो बंगाली स्पीकिंग हिंदूज जो आसाम से आए हैं, तो वहाँ जो असमीज स्पीकिंग हिंदूज हैं उनको ये डर है या उनको ये लगता है कि शायद ये लोग ना हावी हो जाए या कल्चर जो हमारा है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ बंगाली स्पीकिंग पीपल और बंगाली स्पीकिंग हिंदूज कमिंग। सो वहाँ पे भी इसका थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इन दो राज्य को छोड़ करके और कोई खास इम्पैक्ट बाकी राज्यों में नहीं है। Okay. Let us talk about electoral bonds. काफ़ी चर्चा हुई है now that the data has been made public. जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, what are electoral bonds? मतलब electoral bonds is a way of funding political parties by remaining anonymous through wide channel. Okay. तो अगर मुझे एक पार्टी को फंडिंग करनी है लेकिन तो उसके दो तरीके हैं। अगर मैं वाइड चैनल से करना चाहूँ, तीन तरीके हैं लार्जली। या तो मैं सीधा उनको बैंक ट्रांसफर कर दूँ, उसमें हो सकता है कि मेरा नाम जो है वो लीक हो जाए अगर पार्टी ने डिस्क्लोज कर दिया है कि इस कॉर्पोरेट ने इतने पैसे मुझे दिए, या क्योंकि ये बैंक ट्रांसफर है बैंक से या कॉर्पोरेट साइड से कहीं लीक हो सकता है। Anybody can leak it. Anybody can leak it. So there is a risk of getting revealed कि आपने फंड किया है। दूसरा तरीका है कि आप इसको एक ट्रस्ट को पैसा दें। बहुत सारे इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं जो फिर जो पैसा कलेक्ट करते हैं, इसलिए सिमिलर टू अ क्राउड, इट्स लाइक किटी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में आपने पब्लिक से इकट्ठा किया तो ये लोग इकट्ठा करते हैं और फिर डिफरेंट पार्टीज को देते हैं। वो एक तरीका था। तो अगर आपको डायरेक्टली करना है और अनोनिमस रहना है तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप पॉलिटिकल फंडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप वाइट में करना चाहते हो। अब कोई भी कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग क्यों करता है, हम और आप क्यों नहीं करते, या हम और आप इतने बड़ी मात्रा में या बड़ा अमाउंट क्यों नहीं करते? अब इट्स अ वेरी नाइव क्वेश्चन। इट्स लाइक व्हाई डू कॉर्पोरेट्स फंड पॉलिटिकल पार्टीज? For good favor. For good favor, for quid pro quo deals, for liaising for contracts or government work, to be in the good books, etc., etc. तो ये कोई नई बात तो है नहीं। Crony capitalism is a global phenomenon and it's a big issue all over the world. तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लगभग 16,000 करोड़ रुपए जो है, जो अनोनिमस हो करके आप डोनेट कर सकते थे, तो वो 16,000 करोड़ रुपए डोनेट हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट या One second. So what is an electoral bond? This is कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली है क्या? जैसे हम बॉन्ड्स खरीदते हैं, जब अगर आप डीमटेरियलाइज्ड वर्ल्ड जब था, जब डीमैट से पहले का वर्ल्ड,
तो अगर हम IFCI का बॉन्ड खरीदते थे तो हमें क्या मिलता था, एक एक जैसे LIC की अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो क्या, सर्टिफिकेट, इट्स अ सर्टिफिकेट कि मैंने डोनेट किया है। हाँ, यू गो टू SBI, हाँ. you say that I have to buy an electoral bond of let's say 1 crore rupees, so it's a certificate that will be issued to you, and you pay the amount to SBI, but nobody will know that you have bought this bond. So it was an anonymous way of paying to or rather donating to political parties through white channels. Otherwise the anonymous way was black channel. Correct. But now this data has been made public. So now this data has been made public because the Supreme Court said that transparent नहीं है ये मामला जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, और वोटर को ये हक है जानने का कि किसने किसको पैसा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से अब ये जो लिस्ट जो है वो बाहर आ गई है कि किसने कितना पैसा दिया है। बट किसको दिया है ये भी लिस्ट बाहर नहीं है, किसको दिया है, एज इन द टोटल अमाउंट्स आर देयर। सो 16,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ बीजेपी को मिला है और 8,000 करोड़ बाकी और दलों को मिला है, कांग्रेस, टीएमसी, बीजेडी एटसेट्रा। बट किस कॉर्पोरेट ने किस पार्टी को कितना दिया है ये मैचिंग अभी नहीं है। अब वो शायद हो जाए आगे जा करके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी जाए। अब वो मैचिंग हो पाती है या नहीं हो पाती, मैचिंग होने के बाद भी क्या आप इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये सही है, वेरीफाई, आई मीन फॉर इट वाज फॉर अ फेवर और समथिंग, इट इज फेयरली डिफिकल्ट। सो द बैटल नाउ मूव्स टू पब्लिक कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया। अब क्योंकि दोनों ही धड़ों को 50-50% मिला है, तो जो इसका पॉलिटिकल स्टिंग है वो खत्म हो जाता है। लेकिन दो एक्चुअली इट्स नॉट टू फैक्शंस, द लार्जर फैक्शन स्टिल रिमेन्स बीजेपी, हाँ, द रेस्ट इज ऑपोजिशन। करेक्ट। सो लेट्स से टुडे if you are an opposition party, let's say for example TMC, can TMC say that boss BJP has got 8,000 crores of funds? It can say, but they have also got 1,600 crores. So the BJP's argument is, you are a very small party, you represent one state, and you have got 1,600 crores. Actually you've got more. And I am a much bigger party with government of NDA in 18 states. And MPs almost 15 times your size. So I would deserve or I would get a bigger chunk. Correct. क्योंकि इस electoral bond की list में who's who of the political parties list is there. Everybody has got. So हमाम में सभी नंगे हैं जैसा कहा जाता है। तो इसको मतलब ये बहुत शार्प अटैक नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी को मिला है फॉर फेवर्स तो टीएमसी को क्यों मिला, बीजेडी को क्यों मिला, बीआरएस को क्यों मिला, डीएम को क्यों मिला? उसको भी फेवर के लिए ही मिला होगा। आई मीन opposition cannot say that our electoral bond is clean and yours is not, but BJP's electoral bond is dirty. Correct. So that's why the political sting, I think, इसका थोड़ा dilute हो गया, dilute हो गया। हाँ, it has blown the lid off कि भाई ठीक है, political parties को corporate से मिल रहा, but बड़े corporates इसमें से conspicuously absent है। हाँ। कुछ लोगों ने इसको यूज किया है, कुछ लोगों ने इसको नहीं यूज किया, उनको पता होगा शायद, या उनको डाउट होगा कि भाई अननेसेसरीली कभी कुछ लीक हो जाए तो क्या पता। सो सम ऑफ देम हैव स्टेड अवे। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस ओपिनियन बेस्ड। इन योर ओपिनियन इज 2024 अ डन डील? देखिए, भारत में कोई भी चुनाव जो है वो डन डील नहीं होता है जब तक लास्ट वोट काउंट ना हो। उसके 3 कारण होते हैं मुख्यतः। पहला है कि भारत में लेट डिसाइडर्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट 25 to 30% ऑफ वोटर्स डिसाइड whom टू वोट फॉर ऑन द डे ऑफ वोटिंग और 2 to 3 days बिफोर वोटिंग। और हमने अभी डिस्कस किया है कि लीड ही बीजेपी की 18% 19% है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, all these states are the top states among late deciders. So that's why also Maharashtra is complicated because यहाँ लोग वैसे भी late decide करते हैं और वैसे भी माहौल जो है वो complicated है। दूसरा कारण है कि इंडिया में लॉयल वोटर्स की संख्या बहुत कम है।
that is just 31% as per Axis My India survey. So 69% of the people are not loyal voters. They keep on voting for different parties in different elections. You can say they are neutral voters or they are swing voters. तो ये भी बहुत बड़ा चंक है. ये किसको वोट करेगा वो डिसाइड करेगा. ये नॉन हार्डकोर नॉन आइडियोलॉजिकल वोटर है. The highest number of ideological voters are in Gujarat, in UP, Andhra, MP, Uttarakhand, states like this. And the third and the most important is that 37% लोग तो पीएम को देख के वोट कर रहे हैं. 25% लोग कैंडिडेट को देख करके वोट करते हैं. दैट अगेन इज अ वेरी हाई नंबर एंड इज हायर देन द मार्जिन. और अभी तो कैंडिडेट्स भी अनाउंस नहीं हुए हैं. इसीलिए जो अर्ली ओपिनियन पोल्स होते हैं वो गलत साबित होते हैं, क्योंकि कैंडिडेट ही अनाउंस नहीं हुआ है और आज मैं अगर ओपिनियन पोल करूं तो मेरा नंबर गलत हो सकता है. तो इन कारणों की वजह से कोई भी इलेक्शन जो है वो डन डील नहीं होता है. लेकिन किसी भी इलेक्शन में या किसी भी गेम में फेवरेट्स होते हैं. तो बीजेपी इज द क्लियर फेवरेट टू विन. कैन फेवरेट्स लूज? यस, फेवरेट्स हैव लॉस्ट इन द पास्ट एंड दे कैन लूज, बट द प्रोबेबिलिटी इज लो. और इंडिया पार्टी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, इंडिया ब्लॉक जो है वो एसेंशियली री-क्रिश्चियन यूपीए आप उसको कह सकते हैं, जो कांग्रेस लेड अलायंस था. उसमें लार्जली 4-5 राज्यों में एक नया अलायंस बनाने की कोशिश थी. बंगाल टीएमसी, बिहार में नीतीश कुमार का एडिशन, यूपी समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस और आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस पंजाब और दिल्ली में. अब इसमें से ममता दी ने कह दिया है कि मैं एकला चलूंगी. हाँ. तो वो हट जाती है. नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार दी है. तो आई डोंट नो फॉर द व्हाट आई मीन एनथ टाइम तो वो वापस आ गए हैं एनडीए में. तो बिहार में भी वो अलायंस चला जाता है. यूपी में ज़रूर अलायंस है और पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन बगल के राज्य दिल्ली में उसका अलायंस है. तो वहाँ भी थोड़ा डाइल्यूट होता है और बाकी राज्यों में. तो जिस होप के साथ इंडिया अलायंस का जन्म हुआ था वो काफ़ी डाइल्यूट हो गया है. काफ़ी डाइल्यूट हो गया क्योंकि पार्टीज जो है वो छोड़ छोड़ के चली गई हैं और जो पार्टीज बचे भी हैं उसमें सीट एडजस्टमेंट्स को लेकर के काफ़ी तनातनी है. द मेन इशू विद दिस अलायंस इज दैट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म अलायंस. इट डज नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म विजन. करेक्ट. इट हैज बीन क्रिएटेड जस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन एंड जस्ट फॉर ऑपोजिशन को स्ट्रांग बनाना है. ऑपोजिशन को स्ट्रांग बनाना है, मोदी को हराना है, which has a negative connotation. It does not have a positive objective. Yeah, like मोदी नैरेटिव इज, मोदी सरकार का नैरेटिव है कि हम जीतेंगे, किसी को हराना नहीं है. That's the difference. So it has a negative connotation. मोदी को हराने के लिए ये आए हैं क्योंकि इनका कोई अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या विजन हमने देखा नहीं है. और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है तो कैडर में अब जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट पंजाब में, खैर पंजाब में तो अलायंस नहीं है, दिल्ली में लड़ते हैं, गुजरात में लड़ते हैं. अब जैसे कहते हैं द टॉप लीडर्स हैव किस्ड एंड मेड अप, बट द ग्रासरूट वर्कर हैज स्टिल नॉट शेकन हैंड्स विद दीस गाइज. करेक्ट. तो काफी ज्यादा ग्राउंड पे डिसएंचेंटमेंट हो सकता है. उसका कारण ये भी है क्योंकि उनको पता है कि ऊपर वाले तो ठीक है, अगले 1 साल में इनके खिलाफ ही लड़ना है, अगले 2 साल में इनके खिलाफ लड़ना है बंगाल में. करेक्ट. तो कैसे अलायंस होगा? तो ये जिसको एक्सेल शीट में कहते हैं सर्कुलर रेफरेंस एरर आता है जब आप एक्सेल यूज करते हैं काफी. तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल जो हैं वो एंटी कांग्रेसिज्म प्लैंक पे ही पैदा हुए हैं. टीएमसी, एनसीपी, इवन समाजवादी पार्टी फॉर दैट मैटर, इवन आप फॉर दैट मैटर. आपने यूपीए के करप्शन के खिलाफ उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था. तो इट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी अलायंस बिकॉज आपका क्रिएशन ही एंटी कांग्रेस हुआ है. इवन इन शिवसेना कांग्रेस, फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र, इवन हियर. करेक्ट. सो मोस्ट ऑफ द रीजनल पार्टीज इन इंडिया हैव बीन बोर्न आउट ऑफ एंटी कांग्रेस. लेकिन आज क्योंकि पोल पोजीशन चेंज हो गया, अब बीजेपी मेन पोजीशन पे हो गई, वो कुछ दल जो है वो एंटी बीजेपी हो गए. लेकिन क्योंकि वो एंटी कांग्रेस थे, उनके ही वोट शेयर को लेकर के ये क्षेत्रीय दल बढ़े हैं. दोनों में कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं है.
तो इतना, और किसी भी अलायंस में वोट ट्रांसफर बहुत जरूरी होता है. Correct. So that seamless vote transfer between India partners may not happen. Even today, Congress is announcing its guarantee. तो इंडिया का गारंटी क्या है? Yeah, correct. So people also get this confused messaging. Yeah. This messaging is confused. In one state, you are targeting each other, Punjab, AAP and Congress, on a daily basis. क्योंकि सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से पूरा भारत एक ही है, और बगल के राज्य दिल्ली में आप एक साथ लड़ रहे हो. सो इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी. इट्स लाइक टेकिंग वोटर्स फॉर ग्रांटेड. और ऐसा नहीं है कि पहले एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है ये. बंगाल में और केरल में लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, और बंगाल में उसी टाइम पे जब इलेक्शन होता है एक दूसरे के साथ लड़ती है. बट दैट एक्सपेरिमेंट हैज फेल्ड डिजास्ट्रसली बिकॉज अगेन ऑफ दिस कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ वोटर्स, नो क्लैरिटी. सो इसकी वजह से थोड़ी जो धार है उनकी जो है वो काफी कम हो गई है. और कांग्रेस ही कैप्टन है उसका, जैसे बीजेपी है या एनडीए है. एनडीए में बीजेपी क्लियर कैप्टन है. इंडिया ब्लॉक का कैप्टन कौन है ये नहीं पता लोगों को. कौन उसको स्टीयर करेगा वो एक मुश्किल है वहां पर. और ईगोइस्टिक लीडर्स, ईगो भी है बहुत सारे लीडर्स के, तो बहुत सारे कारणों की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो पहले की अपेक्षा में कम हो गया. एंड लास्ट क्वेश्चन, मिशन 400 पॉसिबल है? जो बीजेपी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि जो 404 का जो मैजिकल मार्क था राजीव गांधी जी का, इज इट पॉसिबल एट ऑल? See, it is highly improbable but not impossible. And impossible is possible in politics. We have seen this. Yeah. And Maharashtra is a prime example Yeah. of this. So what happens कि जब चुनाव में जो 25-30% वोटर जो लेट डिसाइडर हैं, ये माहौल के ऊपर वोट करते हैं. माहौल किसका है, हु इज अहेड, हु इज बिहाइंड, ये सारी बातें देख करके वोट करते हैं. तो एंड में अगर बीजेपी माहौल बनाने में कामयाब रहती है, मोमेंटम उसके साथ है, अगर माहौल बनाने में कामयाब रहती है, तो एक उसको वैसे ही आप 25 से 50 सीट का एडवांटेज वैसे ही हो जाता है. आज भी एनडीए जो है, आई मीन 2019 के बेसिस पे 351 सीट्स पे है ऑलरेडी. प्लस दे हैव न्यू अलाइज इन आंध्रा, some allies in UP, some allies in Maharashtra. Correct. They might have some allies in Odisha. Yeah. Even Punjab Akali Dal might come back. So they also know that they are probably short, and they're trying to fulfill this gap. They are working on a strategy which is called RAM. So Prabhu Ram is of course helping them. So एक RAM strategy है. RAM means R is for regain. So in 2019 they lost 35 seats which they had won in 2014. That's a huge number. So they're trying to regain these seats. So regain is the first tier of that strategy. The second tier is attain. Attain means gain. So they are trying to gain seats in Andhra through alliances, in Punjab, in UP, in Maharashtra, as you said. So they are trying to gain seats. They were runner-up on 72 seats in 2019. Yeah. If there is a 5% swing in their favor, they could win 39 of this, of those seats. On 17 seats, they had lost by just 5% margin. That's attain. So, and then the last is maintain. Maintain सबसे important है. Without maintaining the base of 303, they cannot win 404. So they need to maintain 100% strike rate, almost 100% in the seats they had already won. And they also hope that the allies will also have a good strike rate so that they attain this number. Thank you so much. It's been Thank you. fascinating. Thank you. And I'm hoping to have you back once the elections are done so that we can decode it here with you. Thank you so much. And thank you for really breaking it down for us. Really, it's been one of the most fascinating conversations. Thank you so Thank you. Thank you for being the best community, and we'll see you in the next one.